Good evening, everyone. Welcome to yet another exciting book launch event. My name is Priya, your host today on behalf of अध्ययन बुक्स। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारे नए ऑथर से मिलना और उनकी कहानियों को सुनना पसंद आ रहा होगा। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम जिस किताब का लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम है उपासा, अ नेग्लेक्टेड इमॉर्टल सोल। Upasa is a poignant narrative set in early 2010s Bihar, India, exploring the forbidden connection between a Hindu literature teacher and his Muslim student, Upasa. The story unfolds against a backdrop of rigid social boundaries, religious tensions, and societal constraints. So, let me tell you something about the author. Sri Kumar Nityanand is a contemplative writer haunted by one persistent question: why are souls born with such capacity for profound love in a world increasingly devoid of genuine emotion? His work explores those rare individuals willing to sacrifice everything for love, people who experience feelings in their deepest form. In a society where relationships have become mechanical formalities and emotional connections are automated routines, Mr. Nityanand's writing creates space for examining eternal emotions. He observes a troubling paradox in our modern world. Logic has superseded feeling, smiles have become habitual rather than joyful, and tears are more mere ritual rather than expressions of authentic pain. Through Upasa, Nityanand invites readers to consider whether our contemporary world still has room for those who feel deeply and love completely. Does our mechanized society leave space for the truly passionate, or do such souls simply not belong in these times? This fundamental question remains unanswered for Mr. Nityanand, and he extends an invitation to his readers, perhaps once lovers themselves, to join him in contemplating this essential human dilemma. Please join me in welcoming Mr. Kumar with Nityanand. Hello, sir. हाँ ओके मैडम, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अच्छे हैं मैडम। और अध्ययन बुक्स को धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आपने मेरे लिए ये मैजिक क्रिएट कर दिया है। ओके, थैंक यू। That's wonderful to hear, sir. आपकी बुक अब Amazon पर लाइव हो चुकी है। Congratulations. कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा, सचमुच ये मैजिक लग रहा है मुझे। Great. Let's help our viewers understand your journey better. All right. So, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपकी बुक की शुरुआत बहुत ही सोलफुल प्रोलॉग से होती है, सोल्स दैट रिफ्यूज टू ब्रेक। आपको ये कहानी लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? Definitely not inspiring only. It was an incident close to my life, close to my heart. A quiet fire, जो एक ऐसी ज्वाला, एक ऐसी अग्नि जो तेज हवा में भी जलती रहती है, एक ऐसा दीपक जो तेज हवा के झोंके को भी बर्दाश्त करता है, और उस लौ की दहक अभी तक मेरे हृदय में है और मैं इसी से इंस्पायर्ड हुआ हूँ। सर, ये कहानी फॉरबिडन इमोशंस और डीप इनर कॉन्फ्लिक्ट्स पर आधारित है, तो क्या ये प्योर इमेजिनेशन थी या आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशंस ने इसे शेप किया? No madam, I told earlier it was an incident close to my life, close to my heart. और ये छोटे शहरों की हकीकत है। छोटे शहरों की हकीकत यह है कि लोग क्या कहेंगे, ये हर कानून से बड़ा होता है और लोग से डरते हैं। एक मानव से डरता है, क्या कहेंगे लोग, और ये हर कानून से जो बड़ा हो जाता है, यहाँ कानून फेल नजर आता है, ये सिस्टम फेल नजर आता है। इसीलिए हम इसको इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी से ही इसको मानेंगे। ठीक है। ओके मैडम। तो
इस स्टोरी में एक हिंदू टीचर और मुस्लिम स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग दिखाई गई है। तो आपने इतना सेंसिटिव सोशियो रिलीजियस बैकड्रॉप क्यों चुना? ऐसा है मैडम, आई हैव नॉट चूजन, इट वॉज नॉट माई चॉइस, इट वॉज सो इन माई लाइफ। मैंने नहीं चुना, बल्कि मेरी जिंदगी में ये अकस्मात ऐसी घटनाएं आ गई। मैंने चुना नहीं, कोई ट्रेजेडी को अपने लाइफ में चुनता नहीं है, यही मैं कहना चाहूंगा। इट वॉज सो दैट इट इज इन माई लाइफ। कनेक्शंस किसी हिंदू मुस्लिम लेवल से नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि कनेक्शन सोल्स से बनते हैं, कि जब एक दूसरे को समझते हैं, वहां कोई लेवल उचित नहीं है, यही मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी। ओके मैडम। ठीक। तो लाइक बुक में सोसाइटी की बाउंड्रीज लव से ज्यादा पावरफुल दिखती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज भी सोसाइटी का दबाव उतना ही स्ट्रांग है? मैं ऐसा कहूंगा कि इट्स अपॉन यू, बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए वुमन, यू मे क्लियर इट बेटर। उपासा की शादी रूमर्स को छुपाने के लिए हुई, जैसा कि आप बुक में पढ़ेंगे कि उपासा की शादी रूमर्स को छुपाने के लिए, और रूमर्स क्या थे वो आप समझ सकते हैं। और मैं बेटर यही कहूंगा कि बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए वुमन, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एंड आई विल से कि आप कहानी पढ़ें और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। Yes, sir, you are right. Okay, so स्टोरी में साइलेंस, छुपकर लिखे लेटर्स, अनसेड फीलिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपने साइलेंस को इतना पावरफुल डिवाइस क्यों बनाया? ऐसा है, ए ट्रू लव मेक्स पीपल साइलेंट, आई थिंक सो। आई विल कोट इट, ए ट्रू लव मेक्स पीपल साइलेंट, it is a human nature, I think so, and it is a creative process. It's a process of creation, being silent. Okay. Okay, ठीक है। तो जैसे उपासा का कैरेक्टर जेंटल भी है और रेबेलियस भी है, तो आपने इतना लेयर्ड पर्सनालिटी कैसे क्रिएट किया? I am telling it again, I have not created, it was so, and I will say that कि ये मेरी रचना नहीं, बल्कि ईश्वर की रचना ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को मेरे जीवन में प्रवेश कराया। तो बस मैं यही कहूंगा कि इट्स आई हैव नॉट क्रिएटेड, इट वाज सो। I have written as it was. I have written in the story as it was. There is nothing else. Okay, madam. And I will add one thing. It's an intellectual rebellion. वह पिंजरा तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं ऐसे कहूंगा कि वह पिंजरा तोड़ना तो नहीं चाहती थी, वह बस पिंजरे को, उसकी सलाखों को थोड़ी खिसकाना चाहती थी, खोलना चाहती थी, ताकि वह खुली हवा में सांस ले सके। तो इसको एक इंटेलेक्चुअल रिवेलियन कहेंगे। वह पिंजरे को तोड़ने के पक्ष में नहीं थी, वह बस थोड़ी खुली हवा में आजाद सांस लेना चाहती थी, बस इतना ही है। ओके मैडम। तो सर, पूरी कहानी टीचर की नजरों से दिखाई गई है, आपने नैरेटिव उनके पर्सपेक्टिव से ही दिखाने का डिसीजन क्यों लिया? इस पर मैं कहूंगा कि आई एम क्लोज टू द टीचर, सो आई डिड इट। एक विटनेस की हेल्पनेसनेस को मैं चाहता था रीडर्स फील करें। एक विटनेस कितना हेल्पलेस होता है और उसके दिल में क्या क्या जज्बात आते हैं, और जब वह कुछ कह नहीं पाता हो तो उसकी क्या स्थिति होती है,
मैं रीडर्स को ये फील कराना चाहता हूं। और एक बात है कि एक टीचर जब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को जीवन में हार मानते हुए देखता है तो वह दर्द बयां कैसे करे। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो एक टीचर नरिश करता है उसको जिंदगी में हारते हुए देखता है, उस इमोशंस को मैं रीडर्स को फील करवाना चाहता हूं। ऐसा ही है। ओके मैडम। हाँ जी। तो सर बुक में उपासा की मौत को एक्सीडेंट बताया गया है, लेकिन एक ऑनर किलिंग की तरह महसूस होता है। तो आपको ये ट्रेजिक एंड लिखते समय क्या इमोशनल जर्नी से गुजरना पड़ा? इस पर मैं कहूंगा कि it's a dual nature of society, administration and people of our society. डुअल नेचर, हिंदी में इसे दोगलापन कहते हैं, जिसको कि ज्यादा फील आप कर सकते हैं कि हिंदी में इस डुअल नेचर को दोगलापन कहा जाता है। हमारे सिस्टम के, हमारी सोसाइटी के इस दोगलेपन को यहां दिखाया गया है। यू कैन फील, यू मे इमेजिन। मैं इसमें एक बात और कहूंगा कि यू मे इमेजिन दैट हॉट स्टिचेज। आपने अगर कहानी पढ़ी होगी तो देखेंगे कि सलाखों से, गर्म सलाखों से दागी गई थी वो। और किस लिए? फॉर प्यूरिफिकेशन। धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर प्यूरिफिकेशन के लिए उसे गर्म सलाखों से दागा गया था। ये रिचुअल था, रस्म था। तो उसको आप फील करें कि हमारे समाज में ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। बड़े शहरों के लोगों को तो ये विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यू कैन यू इमेजिन द पेन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप क्या जीसस क्राइस्ट के दर्द को महसूस कर सकते हैं? मैं वही पेन महसूस करता हूं कि उपासा ने भी वही पेन महसूस किया होगा जब उसे गर्म सलाखों से प्यूरिफिकेशन के नाम पर दागा गया। तो मैं इस पेन को जीसस क्राइस्ट के पेन पर, जबकि उसको सूली पर चढ़ाया गया, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, उस पेन को मैं यहाँ मतलब बराबरी का दर्जा देता हूं। मैं यही कहूंगा। ओके मैडम। ऑलराइट सर। तो बुक में पैट्रियार्कल कंट्रोल और कम्युनिटी पॉलिसिंग और इंटर रिलीजियस टेंशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। तो आप इससे रीडर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? I want to extend an invitation to the readers, perhaps once lovers themselves. I think all readers are lovers themselves as a human being. I want to invite readers to consider whether our contemporary world still has room for those who feel deeply and love completely. Does our mechanized society leave space for the truly passionate, or do such souls simply not belong in these times? क्या वैसे लोग अब हमारे समाज की जरूरत नहीं है जो कि दिल से प्रेम करते हैं? क्या ये हमारे समाज की जरूरत नहीं है? I want a response from the readers and audiences. मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्या बेटियों को पिंजरे में रखना प्रोटेक्शन है उसका? बेटियों को अगर पिंजरे में कैद रखा जाता है प्रोटेक्शन के नाम पर, तो क्या ये उचित है हमारे सभ्य समाज के लिए? हमारे मानव समाज के इतने विकास की ओर ये पहुंच चुका है, अभी भी ऐसे समाज हैं जहां बेटियों को पिंजरे में रखा जाता है कि वह प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षित रहे। सुरक्षा के नाम पर उसे पिंजरे में बंद किया जाता है। मैं किसी और उपासा की कहानी ट्रेजरी में खत्म न हो, ऐसी मेरी चाहत है। बस यही कहूंगा। प्लीज ज्वाइन मी इन कॉन्टेम्पलेटिंग दिस एसेंशियल ह्यूमन डायलेमा। मैं इस मानव समाज के इस द्वंद्व को रीडर्स तक पहुंचाना चाहता हूं, पाठकों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस द्वंद्व को कि मानव समाज में ऐसी जो विडंबनाएं हैं, इससे कैसे दूर किया जा सकता है। थैंक यू मैडम। ओके।
हाँ जी। आपने जो क्वेश्चन किया एज अ गर्ल मैं भी उससे एग्री करती हूँ कि क्या पिंजरे में रखना इज लाइक अच्छा है प्रोटेक्शन के लिए। तो आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्टोरी में एजुकेशन एक ब्रिज की तरह दिखाया गया है, तो जो कम्युनिटीज को जोड़ता है। तो क्या ये भी आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस्ड है? डेफिनेटली स्कूल और कॉलेज ही वो जगह है जहां की हिंदू मुस्लिम का फर्क मिट जाता है। किसी भी बैरियर को वहां नहीं रखा जाता है। एजुकेशन ही एक ऐसा ब्रिज है जहां सभी बैरियर्स खत्म हो जाते हैं। लिटरेरी क्लब, उस बुक में मैंने कहा है कि लिटरेरी क्लब जो था वही एक सेंचुरी थी जहां की सभी खुली हवा में सांस ले सकते थे, अपनी जज्बात अपनी बातों को रख सकते थे। एजुकेशन ही हर दीवारों और बंधनों को तोड़ सकता है, ऐसा ही मेरा मानना है। ओके मैडम। राइट सर। तो स्टोरी में वाटर, रिवर्स, ओशियन के मेटाफर्स बार बार आते हैं, राइट? तो इनके थ्रू आप रीडर्स को क्या सिंबलाइज करना चाहते हैं? ऐसा है कि पानी का नेचर ही है बहना, उसे आप बांध नहीं सकते। सो वाज उपासा। उपासा भी वैसे ही थी, एक बहती नदी सी, कल कल धारा। कितने भी डैम्स बना लो, नदी रास्ता खोज ही लेती है समुद्र तक पहुंचने के लिए। बस इतना ही कहूंगा इस संबंध में। ठीक है सर। ओके मैडम। तो हाँ जी। तो पोएट्री इस कहानी का हार्ट ब्रेक है। तो क्या आप बिलीव करते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट में पोएट्री एक रेबेलियन बन जाती है? यस, 100%। जब आप बोल नहीं सकते हैं तब आप लिखते हैं। दैट इज स्मॉल रिबेलियंस इन इंक, एंड द पोएट्री इज द बेस्ट, द सेफेस्ट वे। पोएट्री इज द बेस्ट एंड द सेफेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आई थिंक सो। मेरा यही मानना है कि पोएट्री से बेहतर और कुछ नहीं है जहां की आप अपनी भावनाओं को पन्नों पर रख सकते हैं। ओके। Yes, sir. I strongly agree with you in this point. Okay, तो जो आपकी बुक का टाइटल है उपासा, अ नेग्लेक्टेड इमॉर्टल सोल, तो ये बहुत सिंबॉलिक है। आपके लिए उपासा की इमॉर्टैलिटी का क्या मतलब है? ऐसा है कि इमोर्टलिटी का मतलब हमेशा जिंदा रहना नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग में एक छोड़ जाना, एक छाप छोड़ जाना इमोर्टलिटी है, कि जिसे आप भुला ना सकें। ऐसी छाप, उन्हें अमर माना जाता है, उन्हें इमोर्टल माना जाता है, जिसकी छाप दिल से हटे नहीं। दुनिया ने उसकी वैल्यू नहीं समझी, वो नेग्लेक्टेड रह गई, लेकिन उसके शब्द जिंदा रह गए। शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा आपने सुना होगा। और मैं भी महसूस करता हूं कि शब्द ही सर्वशक्तिमान है। यही कहूंगा मैडम। ओके। ओके सर। तो इस किताब में लाइक कौन सा हिस्सा लिखना आपके लिए इमोशनली लाइक सबसे चैलेंजिंग था? तो जैसे सेपरेशन या फोर्स्ड मैरिजेस या लेटर्स या लास्ट ट्रेजेडी जो हुई। दैट लेटर्स नेवर सेंट। वे वे पत्र जो कि कभी भेजे नहीं गए, सिर्फ लिखे गए। वो हेल्पनेसनेस, ये पैरेलल सफरिंग बहुत भारी होता है। ये जानते हुए भी बात करना, एक शिद्दत से बात करना, एक शिद्दत से अपने भावनाओं को लिखना कि दूसरे तक उसकी आवाज नहीं पहुंच सकती है, फिर भी लिखना, फिर भी बोलना, फिर भी उसे पन्नों पर उकेरना। ये पैरेलल सफरिंग सबसे दर्द भरा होता है। सेपरेशन और डेथ तो पेनफुल है ही। बार बार उठता था यही सवाल मन में बार बार यही सवाल उठता था कि ये सही है या गलत। सही और गलत का परिभाषा किसने बनाया, क्या सही क्या गलत। और मन में यही एक हॉन्टिंग क्वेश्चन,
यही था कि क्यों जन्म लेते हैं ऐसे लोग, क्यों जन्म लेते हैं ऐसे लोग इस दुनिया में जो इश्क में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर हो जाते हैं। मशीनी दुनिया की ये बहुसंख्यक मशीनी लोग मशीनी धुएं और मशीनी कोलाहल के साथ जिंदा रहे। दुनिया में सिर्फ मशीन पैदा हो, इंसान नहीं। कभी कभी ऐसा ही लगता है कि इस मशीनी युग में अब क्या सिर्फ मशीनों के पैदा होने का समय आ गया है? क्या यहाँ अब मतलब हृदय वाले मानव की आवश्यकता नहीं रह गई है? यहाँ सिर्फ अब मशीन चाहिए? ऐसे ही भावना मेरे मन में बार बार आती रही और मैं ऐसा कहूंगा कि souls like Upasa may be caged, but they never die. Her soul, neglected by the world, remained immortal in mind. Definitely, her soul, neglected by the world, remained immortal in mind. And I will add here one thing. मेरी नजर में वह सन्यासिन थी। मैं हमेशा उसकी तुलना ईसा से करता हूं, ईसा मसीह, जेसस क्राइस्ट के बलिदान को और उपासा के बलिदान में मुझे कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं दिखता है। मैं उस लेवल के इस सेक्रीफाइस को मानता हूं और ये मैं समाज को आंखें खोल देने वाला ये इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मेरी नजर में वह सन्यासिन थी। जेसस क्राइस्ट ईसा सदृश वह दर्द की पराकाष्ठा रूपी कसौटी पर खरी उतरी थी और पवित्र थी। जिस तरह ईसा ने दर्द की पराकाष्ठा को छुआ और वो ईश्वर बन गए, उसी तरह उपासा ने भी दर्द की पराकाष्ठा को सहकर एक समाज को संदेश दिया है। उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है और समाज अगर ऐसी घटनाओं को नेग्लेक्ट करता है तो फिर समाज को सभ्य कहलाने का हक भी नहीं रह जाता है। ऐसे समाज में जहां की ऐसी घटनाएं हो सकती हैं और उसे हम सभ्य समाज कहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये दोहरापन, ये दोगलापन, ये डुअल नेचर सोसाइटी का इसे खत्म होना चाहिए। मैं पाठक को, रीडर्स को ये बताना चाहता हूं कि वो अब इसे चुपचाप मौन रहकर सहने की जो अपनी आदत है उसे न बना ले। मैं यही कहूंगा और बस यही कहूंगा कि धर्म के नाम पर, प्यूरिफिकेशन के नाम पर जो तरह तरह के मेनली लड़कियों के साथ, औरतों के साथ जो होते हैं, यानी कि उसे बंद होना चाहिए और हर हालत में बंद होना चाहिए। मैं रीडर्स को यही संदेश दूंगा कि आप लोग मौन न रहकर इसके लिए कुछ करें और इसमें मेरी भी मदद करें कि मैं इसको कैसे और बेहतर तरीके से कर सकता हूं। ओके मैडम। Alright, sir, I'm completely understanding your emotions and points. और इसी से जुड़ा हुआ मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप अपने रीडर्स से क्या उम्मीद करते हैं कि वो इस कहानी से क्या सीख कर जाएं? लव, लॉस, करेज या डीप इमोशनल अवेयरनेस? Definitely, I want readers to learn a deep emotional awareness. कास्ट, कैटेगरी, रिलीजन के पार देखने की हिम्मत, कास्ट, कैटेगरी एंड रिलीजियंस के भी पार देखने की हिम्मत मैं रीडर्स में चाहता हूं। सोल से कनेक्टेड होने की क्षमता, कास्ट या धर्म के नाम से परे केवल सोल्स से कनेक्टेड होने की क्षमता और वैसा कैरेक्टर, वैसा चरित्र पैदा हो हमारे समाज में, मैं ऐसा चाहता हूं। इस पर मैं एक कोट करना चाहूंगा कि 7 फेरों वाली नारी, 7 फेरे लेकर जो विवाह होता है, 7 फेरों वाली नारी और 3 कुबूलों वाली नारी से रिश्ता अटूट माना जाता है। रिश्ते अटूट हो, इसके लिए सिर्फ हमारा मानव होना क्या काफी नहीं होता है? और मैं यह भी कहूंगा कि क्या फेरों और कुबूलों के जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, इससे क्या रिश्ते अटूट बन जाते हैं? आखिर इसका क्या अर्थ है और यह मानव समाज पर इसका क्या प्रतिफल है? क्या हम पहले देखे हैं और क्या आज देख रहे हैं और आगे भविष्य क्या इसका परिणाम होगा? इसके बारे में हम बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे रीडर्स जो कि
बहुत अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, वो इसके संबंध में क्या विचार रखते हैं, मैं यही कहूंगा। और मैं एक डेडिकेशन भी रखूंगा कि एट लास्ट with deep reverence I offer my heartfelt tribute to the timeless spirit of eternal love, यानी कि शाश्वत प्रेम को मेरी सजल श्रद्धांजलि। एक प्रेम जो है जिसे कि कई रूपों में कहा गया है कि कबीरदास जी ने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और उसी कबीरदास की धरती पर प्रेम की ये गति क्यों है, इसके लिए कौन जवाबदेह हैं, इसके लिए कौन भविष्य का निर्माण करेंगे। मतलब ऐसी जो दोहरी प्रवृत्ति है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। मैं इस दोहरेपन, इस दोगलेपन के खिलाफ हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे रीडर्स अब चुपचाप न बैठें। इस 21वीं सदी में भी अगर ये दोगलापन, ये दोहरा चरित्र हमारे समाज में विद्यमान है तो इसे दूर होना चाहिए, इसे खत्म होना चाहिए। इट मस्ट बी एबोलिश्ड, मैं यही कहूंगा। और कुछ मैडम? आपका मैसेज काफी अच्छा है आपके रीडर्स के लिए। तो बस मैं आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने अपनी किताब के बारे में हमारे रीडर्स और हमारी ऑडियंस को बताया। सो एनी क्लोजिंग नोट फ्रॉम योर साइड टू योर रीडर्स सर? मैं यही कहूंगा कि मेरी कोशिश उन इनविजिबल बाउंड्रीज को दिखाने की है जो हमारे समाज में आज भी एग्जिस्ट करती है। मैं उस इनविजिबल बाउंड्रीज को पाठक को, रीडर्स के समक्ष पेश करता हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं। और ऐसे जो इंसिडेंट्स हमारे समाज में होते हैं, मैं उसको चाहता हूं कि हमारे रीडर्स जाने, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के जहन में ये बात रहे कि हमारा समाज वैसा नहीं है जो ऊपर से दिखता है। बहुत कुछ है हमारे समाज के भीतर जिसे कि लोग नजरअंदाज करके जीते हैं, चुप रहकर जीते हैं, देखकर भी नजरअंदाज कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। किसी के हृदय पर बीतती है, किसी के जीवन में कोई बात घटती है तो वह बस चुपचाप उसको सहकर इस दुनिया से विदा हो जाता है। मैं ऐसे सभ्य समाज की कल्पना नहीं करता कि जिस पर तमगा सभ्य समाज का लगे और इंसिडेंट्स ऐसे उस समाज में हो। सभ्यता की एक परिभाषा होनी चाहिए कि आखिर सभ्यता क्या है, आप किसे सभ्य समाज कहते हैं, किसे बुद्धिजीवी कहते हैं। क्या जो चुपचाप बैठा रहता है या चुपचाप हर घटनाओं पर अपनी मौन प्रक्रिया देता है, क्या वो सभ्य है, क्या वो बुद्धिजीवी है, या उसे डरपोक कहा जाए जो कि हर घटनाओं से अपना मुंह छुपा लेता है, शुतुरमुर्गी अपनी रणनीति अपनाता है, जिंदगी जीने के लिए शुतुरमुर्गी रणनीति अपनाता है। क्या उसे जायज कहा जाए इस बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, इस समाज के लिए? बस मैं यही संदेश दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं रीडर्स से चाहूंगा हर हमेशा कि रीडर्स हमें कमेंट करें, हमें बताएं कि आखिर मैंने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा और मुझे आगे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। मैं समाज के परिवर्तन की दिशा निर्धारित करना चाहता हूं कि हमारे समाज का जो ये दिशाहीन दौर गुजर रहा है, इसको किस दिशा में ले जाया जा सके, हमारे युवा वर्ग को किस दिशा में प्रेरित किया जा सके, युवाओं के हृदय में किस तरह की भावनाएं पैदा हो, किस तरह का चरित्र विकसित हो, हमारे युवा, हमारे भारतीय युवा कैसा दिखे ही नहीं बल्कि कैसा सोचें, किस दिशा में सोचें और किस दिशा में अपने जीवन को गढ़ें। मैं उसके लिए एक ट्रैक बनाना चाहता हूं और उसके लिए मैंने कलम को ही अपना हथियार बनाया है। और इसके लिए संसाधन हमारे ये युवा वर्ग हैं जो अपने भावनाओं से अगर मुझे अवगत कराते हैं तो वही मेरे लिए संसाधन का कार्य करेगा, ताकि मैं आगे अपने अगले किसी योजना में मैं उन भावनाओं को
एकत्रित कर सकूं और उसे पेश कर सकूं। और सबसे बड़ी बात कि मैं आप अध्ययन बुक्स की टीम को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और सचमुच ये मेरे लिए मैजिक है, एक सपना है जो कि आपने साकार किया। इसके लिए तहे दिल से, हृदय से आपको धन्यवाद करता हूं। जी, नमस्कार। Thank you very much, sir. Thank you again to join us. Yes. हाँ जी। तो हम आपकी बुक का लिंक नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस इनक्रेडिबल जर्नी को जरूर पढ़ें। थैंक यू सो मच मिस्टर कुमार नित्यानंद फॉर दिस heartfelt and insightful conversation. Upasa, a neglected immortal soul, is not just a book, it's an emotional journey that reminds us how powerful silent love, inner courage, and forgotten dreams can be. आपके वर्ड्स ने आज हम सबको टच किया and we truly appreciate the honesty and depth with which you shared your thoughts, right? To everyone who joined us today, thank you for being a part of this special launch. We hope Upasa's story inspires you, moves you, and stays with you even after this session ends. Wishing the author tremendous success and wishing all of you a beautiful reading experience ahead. आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम और भी नए ऑथर्स के साथ जल्दी वापस आएंगे।